Good morning, students. In my last lecture, I was telling you about coping with infertility. Our next topic is test tube babies. This is again very important. It comes in exam and it may carry 3 marks around. Okay. So, in this test tube babies, they have given the procedure that how the test tube baby is formed. First, here, when means the condition to produce a test tube baby is again infertility. If a couple is infertile, means a male female, they both are not able to reproduce means are to fertilize their eggs and sperms. In that condition, the test tube babies is an option. Again, they are saying that there may be four problems. Four problems means a poor sperm production, then poor egg production, blockage in the passage between the sperm and the egg, and the hostile response. This again, if a couple goes to a this clinic, and doctor tells them after the checkup that there is a problem in your body, and due to that means the reproduction is not possible, then they advise the couple to go for the test tube baby. So for the test tube baby, it is a technique, means a fallopian this if the infertility is due to the blockage in a fallopian tube, मतलब अगर fallopian tube में blockage है, then the technique of test tube baby production is more appropriately in vitro fertilization is much useful, है ना. तो मतलब ये ज़्यादातर उस कंडीशन में होता है कि fallopian tube में अगर blockage है ना, तो fallopian tube में blockage होगा तो कभी भी sperm और egg जो है वो fertilize नहीं हो पाएगा. तो वहाँ पर ये test tube baby जो है ये सबसे appropriate तरीका है वहाँ पर. ठीक है. Now in this the egg is removed. In this technique the egg is removed from the woman and fertilized by the husband's sperm outside the body. तो मतलब वुमेन जो है वो एग प्रोड्यूस कर पा रही है, जो मेल है वो भी क्या कर रहा है, स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों फर्टिलाइज नहीं हो पा रहे हैं. तो ड्यू टू दैट दे आर टेकन आउट ऑफ द बॉडी. हस्बैंड के बॉडी से स्पर्म निकालेंगे और फीमेल की बॉडी से एग निकालेंगे. देन अ लेपेरोस्कोप है ना, ये लेपेरोस्कोप होता है. तो इसको वुमेन के एब्डोमिनल कैविटी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस किया जाता है. और इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है, पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनेस्थीसिया. एनेस्थीसिया मतलब बेहोश कर देना, है ना, मतलब सेंस में नहीं होते हैं जब. तो इसकी जो फीमेल होती है, ये लेप्रोस्कोप जो होता है ये उसकी एब्डोमिनल कैविटी में क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. एंड देन सी इफ़ एन एग इज़ डेवलपिंग इन द ओवरी. तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि एग है ओवरी में या नहीं है. If the egg is present, a hollow tube needle is passed into the abdominal cavity to suck it out into the specially prepared chamber. Now, अगर आपका egg present है तो the presence of a egg, the egg is taken out in a dish. एक needle डाली जाती है और needle से क्या करते हैं, वहाँ पर dish मतलब उसको जो egg होता है उसको बाहर निकाल देते हैं. It is then transferred to a flat open dish under the sterile conditions and dilute solution of a father's semen is added to the dish. अभी क्या करना है ना, फीमेल के बॉडी से तो आपने एग निकाल लिया है, अब आप उसको स्टेराइल कंडीशन समझते हैं जहाँ पर भी कोई भी और बैक्टीरिया वायरसेस कोई भी और गंदगी ना हो, मतलब साफ़ सफाई हो. तो वहाँ पर क्या करते हैं कि जो फीमेल का एग है उसके साथ डाइल्यूट सोल्यूशन डाला जाता है फादर्स के सीमेन का, है ना. फादर्स सीमेन मतलब जो हस्बैंड होगा उससे जो सीमेन का सैंपल लिया है उसको पहले डाइल्यूट कर देना है. उतना गाढ़ा थिक नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे स्पर्म्स होंगे. तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डाइल्यूट करेंगे एंड आफ्टर डाइल्यूशन then the semen is mixed with the egg. Okay, now one of the sperm soon fertilizes the egg. The development proceeds with the cleavage of the fertilized egg. Now when 8 to 16 cell is reached, after about 40 hours the egg is transferred to the mother's body by a fine plastic tube inserted through the neck of the womb, है ना. अभी क्या करना है कि आपका जो egg है जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और वो पहुंच जाता है 8 से 16 सेल स्टेज में, है ना, जो ब्लास्टुला होता है ना, ब्लास्टोमियर. तो उस स्टेज में जब ये पहुंच जाता है तो उसको वापस 40 आवर्स के अंदर ये पहुंच जाएगा वहाँ पे. एंड आफ्टर दैट इट इज़ अगेन इंट्रोड्यूस्ड और इंसर्टेड इनटू द वुमेन्स वूम्ब. उसको प्रॉब्लम क्या थी, वुमेन वाज हैविंग द प्रॉब्लम दैट हर फैलोपियन ट्यूब वाज ब्लॉक्ड.
एंड ड्यू टू द ब्लॉकेज देयर वाज नो फर्टिलिटी। तो अभी हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है बाहर कि हमने मेल के स्पर्म और फीमेल के एग को क्या करा है, फर्टिलाइज करा दिया है। तो फर्टिलाइज कराने के बाद आप क्या करेंगे, जब वो it comes to a 16 cell stage, you will again send it back to the means womb of a mother. Now if in a time if the timing has been correct, the lining of the woman's womb is ready to receive the fertilized egg so that it will be implanted, develop in the same way as a naturally fertilized egg. और अगर मदर के वूम की कंडीशन सही है, वूम की कंडीशन मतलब एक रिसीव करने का टाइम होता है वेन एवर दिस ब्लास्टोसिस्ट इज रेडी to be implanted in the uterus. I hope you have studied in 10th standard implantation. The mother's womb is ready for implantation. If you introduce that time, that fertilize, ये आपका 16 to 16 cell stage, अगर आप उस टाइम इंट्रोड्यूस करते हैं तो एकदम से वो मदर के यूट्रस में क्या होता है, वहाँ पर अपने आप को एडहेयर कर लेता है। जो 16 सेल स्टेज है वो अपने आप को क्या करती है, यूट्रस की वॉल के साथ स्टिक कर लेती है और नॉर्मल बेबी की तरह ही डेवलपमेंट होता है। Now the baby thus produced is called a test tube baby. Technique like this requires a special research and scientific backup for the surgeon performing the operation. अभी इस टाइप का जो बेबी बनेगा दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। एंड अगेन दे आर सेइंग कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो डॉक्टर होगा उसी के अंडर आपको ये सर्जरी करवानी होती है, या ये सारे काम आपने जो करने हैं कि मदर के वूम से पहले मदर के ओवरी से एग निकालना है एंड देन अगेन इंट्रोडक्शन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग 16 सेल स्टेज, इसको वापस वूम में ट्रांसफ़र करना। तो इसमें एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत होती है, आप किसी भी डॉक्टर से नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। Now in vitro fertilization is a new development, but with the improvement in the technique it may become very common in the country in near future. अभी ये मतलब क्योंकि टेक्निक ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन in the near future maybe it will be used everywhere. Okay. Now in another technique known as embryo freezing, an embryo fertilized in vitro is taken and then frozen in a tank of liquid nitrogen. Now here they are saying कि आप एम्ब्रियो को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। एक दूसरी टेक्निक है जहाँ पे आप क्या करेंगे, एम्ब्रियो स्टेज में जब होता है ना, जो जाइगोट होता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो है आपका, ब्लास्टोसिस देन एम्ब्रियो, तो यहाँ पे आप इसको फ्रोज़ कर सकते हैं, फ्रोज़न कर सकते हैं इन अ लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो -200 डिग्रीज़ पे है and it is suspended there. The frozen embryo can be thawed out later and introduced into the mother's womb where the postpartum pregnancy can be continued. मतलब मान लो कि अभी एग प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्पर्म भी है, तो आपने इसको फर्टिलाइज़ कर दिया बाहर, और फर्टिलाइज़ करने के बाद वो जो है एम्ब्रियो स्टेज तक पहुंच जाता है। तो अगर अभी मदर कह रही है कि मेरे को नहीं अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और बाद में ही प्रेगनेंसी करनी है, तो आप इस एम्ब्रियो को क्या कीजिए, फ्रीज़ कर दीजिए, है ना। तो लिक्विड नाइट्रोजन में अगर आप इसको फ्रीज़ कर देते हैं तो यू कैन यूज़ दिस एम्ब्रियो लेटर ऑन। आप इसको बाद में लिक्विड नाइट्रोजन से निकालिए, उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद आप इसको फिर से मदर की वूम में या यूट्रस में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। और इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होगा, नॉर्मल जैसी प्रेगनेंसी होती है और जैसा बेबी डेवलप होता है, दैट टाइप द बेबी विल डेवलप। Now, in very rare cases, the surrogate mother is used to bring up the in vitro fertilization ovum to the maturity. The surrogate mother carries the baby in her womb until it is born. Although surrogate motherhood is now technically possible, many moral issues are involved. Now, अभी ये दूसरा इन्होंने केस बताया है कि कई बार क्या होता है कि मदर का यूट्रस भी ठीक नहीं है अगर टू कैरी द चाइल्ड, तो आप सैरोगेट मदरहुड भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी लेडी को तब तक आप हायर कर सकते हैं जब तक वो क्या करेगी, 9 मंथ्स बेबी को पूरा बर्थ देने तक अपने साथ रख के, एंड व्हेन शी डिलीवर्स द बेबी शी विल गिव यू द बेबी एंड शी विल लीव। ओके, तो सैरोगेट मदरहुड भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन समटाइम्स द टेक्निक इज़ यूज्ड, टेक्निक इज़ आस्क्ड, एंड इट इज़ अ 3 marks क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड्स। ओके, then next is your amniocentesis. Amniocentesis is a technique used to diagnose the fetal abnormalities by drawing a sample of amniotic fluid by a hypodermic needle inserted through the mother's abdomen into the uterus. देखिए amniocentesis, again this is also a question for board exams. amniocentesis जो होता है
ये आपके लिए एक ऐसी टेक्निक है जिसमें अगर बेबी जो है एबनॉर्मल कंडीशन में है, मतलब कभी भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो क्या होता है कि उसको अल्ट्रासाउंड से बार बार चेक किया जाता है, एंड इफ़ इन अल्ट्रासाउंड वी फाइंड दैट देयर आर सम एबनॉर्मलिटीज़ इन द फीटस, फीटस समझते हैं, इट इज़ अ एम्ब्रियो और द जाइगोट विच इज़ ग्रोइंग, जो बेबी बन रहा है, तो अगर उसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी लग रही है तो एमिनोसिंथेसिस किया जाता है। और इस एमिनोसिंथेसिस में क्या किया जाता है, ये बेबी की कोई भी एबनॉर्मलिटी जो है उसको आप फाइंड आउट करेंगे बाय ड्रॉइंग द एमिनोटिक फ्लूइड। एमिनोटिक फ्लूइड आई होप यू नो, है ना, एम्ब्रियो में प्रेजेंट, सॉरी, जो आपका यूट्रस होता है जहाँ बेबी ग्रो कर रहा है उसके चारों तरफ क्या होता है, जो लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड एमिनोटिक फ्लूइड। ओके, तो उस लिक्विड को निकाला जाता है विद अ हाइपोडर्मल नीडल, ठीक है, हाइपोडर्मिक नीडल इंसर्टेड थ्रू द मदर्स एब्डोमेन इनटू द यूट्रस, मतलब मदर के एब्डोमेन से इंजेक्शन एक सिरिंज भेजी जाती है और वहाँ से जो उसका यूट्रस होगा वहाँ से वो लिक्विड जो है सिरिंज में निकाला जाता है और फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि बेबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Now, amniocentesis usually is considered for any pregnant woman who is 35 years of age or more at delivery. अगर किसी फीमेल की एज जो है 35 से ऊपर हो गई है, then amniocentesis can be done. Second one is individual who already have a child with a chromosomal problem such as Down syndrome. कई बार क्या होता है कि कई सारे कपल्स की मतलब पहला बच्चा जो है अगर उसे डाउन सिंड्रोम जैसी या कोई ऐसी बीमारी है जो कि क्रोमोसोम से हो सकती है, तो क्रोमोसोम से अगर उनके पहले चाइल्ड में प्रॉब्लम है तो हो सकता है दूसरे में भी हो, तो उसको चेक करने के लिए भी एम्यूनोसिंथेसिस किया जाता है। थर्ड वाला है इंडिविजुअल हु देमसेल्व्स हैव अ क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन एबनॉर्मलिटी। फिर दूसरा ये है कि अगर कोई आपके खुद जो पेरेंट है, मतलब अगर उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है तो कई बार क्या होता है कि आपको बच्चे को चेक करना पड़ता है कि वो एबनॉर्मलिटी क्या है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की वजह से कहीं आगे तो नहीं चली गई है, मतलब बेबी में तो नहीं चली गई है, तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो फिर क्या करते हैं, फिर मतलब ये वाली जो टेक्निक है इससे फाइंड आउट किया जाता है कि है वो प्रॉब्लम या नहीं है, ठीक है। फोर्थ वाला है कपल एट अ रिस्क ऑफ प्रीनेटल डायग्नोस्टिक जेनेटिक कंडीशन सच एज Tay-Sachs डिजीज़ एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड सिकल सेल एनीमिया। फिर काफ़ी सारे कपल्स को जेनेटिक प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो अगर इस टाइप की कोई भी जेनेटिक सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं कपल को, तो अगेन देयर चाइल्ड और देयर बेबी इज़ चेक्ड फॉर दिस एम्यूनोसेंटेसिस इज़ डन सो दैट यू कैन चेक कि उनके बच्चे में तो ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देन नेक्स्ट इज़ एन अल्ट्रासाउंड इंडिकेटिंग पॉसिबल फीटल एबनॉर्मलिटी। ये तब किया जाता है कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपको बाई चांस फिफ्थ कंडीशन है ये कि अगर अल्ट्रासाउंड में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ एबनॉर्मलिटी तो है बेबी में लेकिन समझ में नहीं आ रही है, तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटी देन यू विल गो फॉर एम्यूनोसेंटेसिस। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स यू कैन सी 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 points. You have to again learn them, remember them. This comes again for 2 marks, that what are the condition in which the amniocentesis is done. Okay, now prior to performing the procedure the fetal ultrasound is performed. अच्छा, ये इसको करने से पहले क्या करना है, अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी है। आप डायरेक्टली एम्यूनोसेंटेसिस नहीं कर सकते। इफ़ यू आर डूइंग अल्ट्रासाउंड देन यू फील कि कुछ गड़बड़ हो रहा है बेबी में, देन यू विल डू एम्यूनोसेंटेसिस। ओके, now this ultrasound is performed to access the fetal number, viability and gestation age. तो आपने ये अल्ट्रासाउंड करना क्यों है पहले, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि फीटस की एज क्या है। एज मतलब 1 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया, प्रेगनेंसी को 3 महीना हो गया है, फिर उसका क्या है फीटल नंबर, मतलब कि एक ही बच्चा है या कई बार क्या होता है जुड़वा होते हैं, तो कई बार 2 बच्चे तो नहीं हैं वूम में, है ना, फॉर दैट ऑल्सो इट इज़ डन। दैन जेस्टेशन एज ऑल्सो, वाइबिलिटी मतलब कि जो बेबीज़ हैं या बेबी है सिंगल वो लिविंग है वूम में या नहीं है, एज वेल एज अ यूट्रिन एनाटॉमी, प्लेसेंटल पोजीशन एंड द फ्लूइड स्टेटस। फिर आपको ये देखना होता है कि यूट्रिन में उसका जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप हो रहा है, वो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है प्रॉपर्ली या नहीं, और उसमें लिक्विड पूरा है कि नहीं है बेबी के चारों तरफ, है ना, जो एम्यूनोटिक फ्लूइड है। तो ये सारी चीज़ें हम अल्ट्रासाउंड से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके,
Now this can be done with the ultrasound. Now thereafter a small sample of amniotic fluid is obtained from the mother's uterus under the ultrasound. फिर इसके बाद क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन टेक द amniotic fluid from the this womb of a mother in the guidance of a suitable doctor, and suitable means the all the people performing this work should be trained. A thin needle is used to withdraw 10 ml of amniotic fluid for analysis. इसमें सिर्फ 10 ml आपको amniotic fluid चाहिए और उसी से काम हो जाएगा. Now the procedure, it takes 2 to 3 minutes. Now menstrual like cramping may occur after the test has been after the test. Now avoidance of heavy lifting and strenuous exercise 2 to 3 days are usually maintained. रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर एमिनोसिंथेसिस, तो एमिनोसिंथेसिस में 2 या 3 मिनट लगते हैं, और इसमें जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्रैम्पिंग होती है, बॉडी में पेन होता है हल्का सा, तो उस टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है फीमेल को. अलॉन्ग विद दैट इसमें डॉक्टर्स मना करते हैं कोई बहुत भारी एक्सरसाइज करने के लिए या भारी चीज़ उठाने के लिए, जो होता है एमिनोसिंथेसिस के बाद मना कर दिया जाता है. नाउ दिस इज़ द बेबी लाइक, और ये वोम में बेबी है, तो ये आप देख रहे होंगे नीडल से निकाल रहे हैं द एमिनोटिक फ्लूइड. Then it is kept here and then it is analyzed. Okay, by the figure you can see. Now the amniocentesis is usually performed before the 15 week. ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 वीक का जब आपका बेबी होगा, 15 मतलब अराउंड 3.5 months है ना, तो 3.5 months के ही टाइम क्या होता है, यू कैन डू एमिनोसेंटेसिस. अगर उसके बाद और बड़ा हो गया है बेबी तो एमिनोसेंटेसिस करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अप टू दिस टाइम 15 weeks, if there is problem in the pregnancy you can have the safe abortion, means you can remove the baby from the womb if it is required. okay, amniocentesis के results में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है कि बेबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो you can do the safe abortion till 15 weeks. if it is the embryo is more than 15 weeks, तो abortion में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है. now amniocentesis is common and reliable tool for this. Now in this what you have to do, I'll just take this portion once again, means I'll just give a brief idea. If you get time, please go through this portion. Okay, now genetic counseling and then sexually transmitted disease I'll take in my next video. Thank you.